اس کی آنکھ پوروا کے جگانے پر کھلی تھی۔ باہر مغرب کی اذانیں ہو رہی تھی۔ پوروا اسے اٹھا کر منہ پھلائے واپس کمرے سے نکل گئی۔ اسے اس کی بچکانہ حرکت پر بے پناہ پیار آیا۔ کندھوں تک آتے بالوں میں انگلیاں چلا کر وہ اٹھی، چینج کر کے شاور لیا اور نماز پڑھ کر کچن میں جھانکا۔ آنی کھانا بنا رہی تھی جبکہ پوروا وہیں ٹیبل پر بیٹھ کر سیب کھاتی پیر جھلا رہی تھی۔ بالوں کی ڈھیلی پونی باندھی ہوئی تھی، ٹراؤزر شرٹ پہنے، اپنی عمر سے بھی چھوٹی لگ رہی تھی۔ آنی کی بہت ساری ہدایات کے بعد ایک ہلکا سا اسٹالر اب گلے میں لٹکا لیتی تھی۔ آنی، میں نے ریم سے بات کی ہے، کل وہ آئے گی تو آپ نے جو کراکری کا سامان لینا اس کے ساتھ لے لینا۔ فرنیچر کا ڈیزائن میں آن لائن دیکھ لوں گی۔ اب بس اپنی ٹویٹی کو وقت دیا کروں گی، اس نے آنی سے کہہ کر خود سے دور دھکیلتی پوروا کے زبردستی گال چوم کر اس کے گرد بازو پھیلا کر گھیرا تنگ کیا۔ اچھی بات ہے، میں دیکھ لوں گی، بس ڈریسز لینے کے لیے لاسٹ ڈیز میں ایک ساتھ چلیں گے۔ آنی نے پیار سے مسکرا کر دونوں کو دیکھا۔ پوروا رخ موڑ کر سیب کتر رہی تھی، چہرے پر ناراضگی کے واضح آثار تھے اور آنکھیں بھی نم کر چکی تھی وہ اپنی۔ میری ٹویٹی ہر وقت ایپل کھا کھا کر گال بھی ویسے کر لیے ہیں تم نے، پریہان نے شرارت سے ہنس کر کہا اور اس کے گال کھینچے۔ مجھے تنگ نہیں کریں، آپ تو خوش ہیں نا، شادی ہو رہی ہے، کسی کو میری پرواہ نہیں۔ میں پریسا آپی کے پاس نہیں جاؤں گی، کہیں نہیں جاؤں گی میں۔ وہ آدھا کھایا سیب وہیں ٹیبل پر پڑی ٹوکری میں رکھ کر پریہان کو پیچھے دھکیلتی ٹیبل سے اترتی کچن سے نکل گئی۔ پریہان نے پریشانی سے اس کو پیچھے سے دیکھا۔ فکر مت کرو، اپسٹ ہے، ٹائم دو گی تو ٹھیک ہو جائے گی، ویسے بھی بہت دھکے کھا لیے مارکیٹس کے، اب اپنی سکن کیئر کرو، ریسٹ کرو اور پوروا کو بھی وقت دو۔ آنی نے اس کا گال تھپ تھپا کر اطمینان دلایا۔ وہ ٹھنڈی آہ بھر کر پوروا کا رکھا سیب اٹھا کر کترتی باہر نکلی۔ ٹی وی لاؤنج میں سامنے ٹیبل پر انکل کا موبائل پڑا دیکھ اسے یکدم حدیر کے نمبر کا خیال آیا۔ انکل کے منہ سے ذکر سننے کا مطلب وہ جانتے تو تھے ہی، اور جانتے تھے تو نمبر بھی ہوگا۔ ویسے تو اسے یقین ہونے لگا تھا کہ اس کا فیانسی وہی تھا، کیونکہ اس نے انجان لڑکی کو وقت دیا، پیسے تک دینے کو تیار تھا۔ یہی وجہ ہو سکتی تھی نا۔ وقار صاحب مغرب پڑھنے مسجد تک جاتے تھے تو ملنے ملانے والوں کے ساتھ کافی ٹائم لگ جاتا تھا۔ اس نے موبائل اٹھا کر اپنے موبائل پر نمبر نوٹ کیا اور کھڑے کھڑے میسج کر دیا، آپ سے ملنا ہے مجھے، منڈے کو آؤں گی آپ کے آفس۔ میسج بھیج کر اس نے کمرے کی طرف قدم بڑھائے۔ کل کا دن وہ پوروا کے ساتھ گزارنا چاہتی تھی۔ سنڈے تھا تو وہ گھر ہوتی۔ کمرے میں سامنے ہی پوروا بیڈ پر پڑی رو رہی تھی۔ وہ دل گرفتہ سی اس کی طرف بڑھی، اس کے پاس بیٹھتے اس کے بکھرے بال سنوار کر چومنے لگی۔ اس کے رونے پر اس کی بھی آنکھیں بھر آئی تھی۔ پوروا، ایسے مت کرو نا، اپیا مجبور ہے۔ اس نام کے فیونسی سے بات بھی کرنے کی کوشش کی کہ شادی رکوا سکوں۔ اب بتاؤ اور کیا کرتی میں؟ پریہان کی نم آواز پر وہ اٹھ کر اس سے لپٹ گئی۔ دونوں بہنیں ایک دوسرے کے گلے لگی رو رہی تھی۔ ماں باپ کی کمی محسوس ہو رہی تھی، بے بسی اور بے چارگی بھی چبھ رہی تھی۔ اگر ان کی ماں ہوتی تو آج اس بے وقت اور جلد بازی کی شادی پر کبھی نہ مانتی، یا سمجھاتی یا انکار کر دیتی۔ کچھ دیر بعد وہ پوروا کو منانے اور چپ کروانے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ عام لڑکیوں کی طرح پوروا شادی کی تیاریوں، نیو ڈریسز یا فنکشنز کے لیے بالکل ایکسائٹیڈ نہیں ہو رہی تھی، اور یہی بات پریہان کو اداس کر رہی تھی۔ باتیں کرتے کرتے کتنا وقت گزر گیا جب آنی نے ڈنر کے لیے دونوں کو بلا لیا۔ جاؤ اپنے منہ ہاتھ دھو لو، آنی پریشان ہوں گی۔ پوروا کے بھیگے چہرے اور نم شہد رنگ آنکھوں کو دیکھتے اسے واش روم میں بھیج گئی اور بھیگتی آنکھوں کو تھپ تھپا کر اپنے آنسو روکے۔ میسج کی بیپ پر موبائل اٹھا کر دیکھا، ناٹ منڈے، میں بزی ہوں، ٹیوزڈے از گڈ۔ جوابی میسج۔ کچھ ہی دیر بعد اس کے دوگلے پن پر دانت پیسے اس نے، یا وہ انجان بن رہا تھا یا آنی نے کوئی اولڈ یا رانگ نمبر دے دیا تھا اسے۔ وہ آج پھر سے اسی بلڈنگ کے سامنے تھی۔ اسے یقین تھا آج وہ جس سے مل رہی ہے وہ اس کا منگیتر ہی ہے۔ منال کا خیال آیا، وہ حقیقت جانے گی تو کیا کہے گی؟ ہرٹ ہوگی، شرمندہ یا پھر ناراض؟ قدم اندر بڑھائے۔ اس بار ریسیپشن پر نہ وہ رکی تھی اور نہ اسے روکا گیا۔ پہلے سے بتا کر آنے کا فائدہ؟ وہ سر جھٹکتی تیزی سے آگے بڑھی۔ آفس کے دروازے پر کھڑے ہو کر حالت پھر سے وہی ہو گئی جو پہلی بار تھی۔ چہرے پر ہلکا پسینہ، نروس اتنی کہ ہاتھ لرز رہے تھے۔ پہلے اجنبی سے ملنے کا خوف تھا، اور اس بار وہ اس سے اپنے اور اس کے درمیان موجود رشتے کا سوال کرنے۔ نروس اتنی کہ ہاتھ لرز رہے تھے۔ پہلی بار کسی اجنبی سے ملنے کا خوف تھا اور اس بار اس سے اپنے اور اس کے درمیان موجود رشتے کا سوال کرنے جا رہی تھی وہ، جبکہ اسے صرف شک تھا کہ شاید وہ اس کا منگیتر۔ وہ سوچوں کو جھٹکتی ایک قدم پیچھے ہوئی، پھر آگے بڑھی، پھر رک گئی۔ یہ تذبذب اس کی زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ تھا۔ کوئی بھی کام کرتے آخری لمحے تک اسے یہی خوف کھاتا تھا، کرنا چاہیے یا نہیں۔
आर या पार। वो झटके से ग्लास डोर खोलकर अंदर दाखिल हुई। सामने ही वो अपनी चेयर पर बैठा लैपटॉप पर नजरें गाड़े मसरूफ सा बोल रहा था और उसके सामने एक लड़की खड़ी सर हिला रही थी। वो शायद उसकी पीए थी। प्रिहान झिझक सी गई। उसे दिन के साथ वक्त भी बता कर आना चाहिए था। बात करते करते वो उसकी तरफ मुतवज्जो हुआ तो जरा रुका और फिर से उस लड़की की तरफ देखा जो बगौर दरवाजे के पास अटक कर खड़ी प्रिहान को देख रही थी। उसे पुकार कर बोला, मिस मिजना, आप ये सारे पॉइंट्स नोट कर लें और डिजाइनिंग की ब्रांच से आज 7 बजे तक मीटिंग अरेंज करवाएं मेरी। अब आप जा सकती हैं और फिलहाल ऑफिस में किसी को मत भेजिएगा। संजीदगी से हिदायत देकर लैपटॉप के पास पड़ी फाइल बंद करके उसे पकड़ाते हुए वो उठा। वो लड़की भी तेजी से फाइल लेती सर हिलाकर ऑफिस से निकली, मगर निकलने से पहले एक हैरान नज़र प्रिहान पर ज़रूर डाल कर गई। डार्क ब्लू जीन्स पर घुटनों तक आती ढीली सी ग्रे कलर की शर्ट और सर पर स्टॉलर लिया हुआ था हम रंग, पैरों में स्नीकर्स और हाथ में छोटा सा क्लच। वो कहीं से भी ना जॉब होल्डर लग रही थी और ना ही फैमिली मेंबर लगती थी। बहुत ज़्यादा सिंपल, रफ और आम सी लड़की। उसकी हैरत प्रिहान को बखूबी समझ आई थी, तभी नाक चढ़ाया। आइए मिस प्रिहान, बैठकर बात करते हैं या आप आज भी जल्दी में। सिटिंग एरिया पर पड़े सोफ़ों में से एक सोफ़े पर बैठकर वो बोला तो लहजे में तंज या तमस्कर नहीं था, मगर फिर भी वो शर्मिंदा हुई। आगे बढ़कर एक सिंगल सोफ़े पर बैठ गई। इस बार उलझन बढ़ गई कि वो बात कैसे करे। क्या सीधा साफ कह दे कि वो उसका मंगेतर है या नहीं, या पूछे वो हेल्प क्यों करता रहा, क्या रिश्ता है। मगर वो बात पुरानी हो चुकी थी और शर्मिंदगी का बाइस भी थी। इस बात को फिर से छेड़ना सही नहीं था। वो बात शुरू करने के लिए अल्फाज ढूंढती सोच में गुम हुई। वो एक खामोश नज़र उस पर डालता इंटरकॉम पर सैंडविच और कॉफ़ी का ऑर्डर देने लगा। क्या आपकी वो ज़रूरत पूरी हो गई जिसके लिए पैसे चाहिए थे। कुछ देर की खामोशी को उसने सवाल करके तोड़ा तो वो ख्याल से जागी। जी नहीं, मेरा मतलब आपको बताया था ना, मुझे पैसे नहीं चाहिए थे। एक्चुअली वो बस। प्रिहान जिस बात पर पिछली मर्तबा नाक चढ़ा कर गई थी, बात वहीं आन रुकी थी। वो लब काटती शर्मिंदा सी बोलते हुए चुप हुई और उसे देखा। वो अब भी सवालिया नज़र से देखता बात पूरी होने का मुंतज़िर था। वो अंदर ही अंदर जिद हुई, आखिर वो गुजरी बात के लिए इतना मुतजस्सिस क्यों है। वो बस एक गेम थी, आई मीन डेयर था। उसने खिफ़त से जवाब दिया और वो लब भींच गया। गेम थी? किसी अजनबी से पैसे लेना, और आप मेरे ऑफिस तक आ गई अकेली, बस एक डेयर के लिए। उसके अल्फाज और संजीदा लहजे पर वो शर्मिंदा होती सर झुका गई थी। अच्छा ही था कि ये गलतफहमी आज दूर कर दे। पियन ऑफिस के दरवाजे पर नॉक करता अंदर आया। टी ट्रॉली में रखी स्टेज से सैंडविच और कॉफ़ी के कप टेबल पर रखे और पलट कर चला गया। मैंने लंच नहीं किया इसलिए ये मंगवाए, आई होप आप ज्वाइन करेंगी। कॉफ़ी का कप उसके सामने रखकर वो सैंडविच भी उसके सामने कर गया। नहीं थैंक यू, मैं कॉफ़ी नहीं पीती। इस बार वो तहजीब से इनकार कर गई। अब तो रिश्ता बदल रहा था तो उसने बार बार अपने दिमाग में जागती इस बात पर खुद को कोसा और सर झटका। मैं पी रहा हूँ तो आपको भी पीनी होगी। वो कप उसके सामने करते हुक्मिया अंदाज में बोला, देखिए आपको गलत फहमी हुई है कि मैं ऐसी चीप गेम्स खेलती हूँ और अजनबियों से पैसा लेती या मिलती हूँ। ऐसा कुछ नहीं। मेरी फ्रेंड्स ने जो नंबर दिया वो एक जानने वाले का था और मुझसे वो नंबर पता नहीं कैसे एक्सचेंज हो गया था और मैं गलती से आपको मैसेजेस करती रही। मुझे जहाँ जाना था वहाँ मेरी फ्रेंड ऑलरेडी मौजूद थी, मगर मैं आपकी बताई हुई लोकेशन पर आ गई गलती से, और इसलिए ये सब। मैं अकेली किसी ऑफिस में कहीं भी किसी से मिलने नहीं जाती और ना ही ये मेरी हॉबी है। वो यकदम हिम्मत करती तेज़ी से बोलती जा रही थी। हर जुमले में वो 2 लफ्ज़ गलती से पर जोर दे जाती और जताती। वो सैंडविच से इंसाफ करता खामोशी से सुन रहा था। उसकी ये बात अच्छी थी कि वो बात पूरी तवज्जो, शायद शदीद तवज्जो से सुनता था। आपने मुझसे टकराने पर माजरत की थी, वो भी गलत था, या आप सबसे टकराती फिरती हैं। उसके सवाल पर वो चौंकी। तो क्या वो हर बात याद रखे हुए था। प्रिहान को जवाब समझ नहीं आया तो वो चुप रही। हाँ, टकराई तो वो उससे भी थी। ओके, और उससे पहले आप रोड पर नाबीना बनी हुई थी। वो भी डेयर था बस। प्रिहान ने जल्दी से बात मुकम्मल की तो वो अबरूज का आ गया। मुझसे टकराना डेयर था? कॉफ़ी का घूंट भरकर इत्मीनान से पूछा तो उसका दिमाग भग से उड़ा। नहीं, बस ब्लाइंड लोगों की तरह रोड पर चलना था मुझे। आप बाई चांस टकरा गए। वो वजाहत देती रूहान सी हो गई। इस बार सब वजाहत देना पड़ी। रिश्ता बन रहा था और ऐसा नाजुक रिश्ता कि इस सब की बुनियाद बनाकर वो सारी ज़िंदगी मुश्किल में डाल सकता था उसको। रिश्ता, उफ। वो अपने दिमाग पर 2 हर्फ भेज गई। आपको नहीं लगता काफ़ी ड्रामेटिक कोइंसिडेंस है? अंधेपन के डेयर में आप गलती से मुझसे टकराएं। अगली बार उसी गलती से एक नंबर एक्सचेंज हुआ और शायद आज भी उसी गलती से आई होंगी आप। वो कॉफ़ी के घूंट भरता इत्मीनान से बोला और प्रिहान को लगा वो मुस्कुराया है। वो मुस्कुरा रहा था, मगर उसके देखने पर मुस्कुराहट दबा गया। क्या वो शक कर रहा था? प्रिहान को अपना सच साबित करना मुश्किल लगा था। मैं सच कह रही हूँ, वो सब गलती से हुआ था। वो सर झुकाकर फीके लहजे में बोली। कॉफ़ी का कप
कप सामने पड़ा ठंडा हो रहा था। हदीर ने एक नज़र उस पर डाली जैसे कोई बच्चा गलती पर नादिम हो, उदास हो और अपने किए की वजाहत देने की नाकाम कोशिश पर परेशान हो। ऐसी ही लगी थी वो उसे। ओके, बहुत बुरे खेल हैं आपकी फ्रेंड्स के और आपके, आपको ये सब नहीं करना चाहिए, कॉफ़ी पिए। वो बेसाख्तगी में नर्म लहजा इख्तियार कर गया। बात बदल कर शर्मिंदगी से उसे निकाला। प्रिहान ने जल्दी से कॉफ़ी उठाकर सिप लिया। क्रीम कॉफ़ी थी, स्वीट थी, इसलिए अच्छी लग रही थी। छोटे छोटे सिप लेती चोर नज़र से उसे देखती रही जो अपनी कॉफ़ी पी रहा था। पुरसोच नज़र कप पर जमी थी। क्या आप इंगेज्ड हैं? प्रिहान ने काफ़ी सोच विचार के बाद यही सवाल मुनासिब समझा। सीधा पूछना अजीब ही लगा, जवाब से ही जवाब मिल जाना था। नहीं, एक लफ्ज़ और सख्ती से तरदीद। प्रिहान के हलक में कॉफ़ी अटक सी गई। जल्दी से कप टेबल पर रखकर गला खंकारा। उसे देखा। आपको अब बता देना चाहिए। मेरा मतलब अगर इंगेज्ड हैं तो छुपाने की क्या बात है? वो बेइख्तियारी में कहे जुमले पर उसकी हैरत पर वजाहत देने लगी। एंगेज्ड नहीं हूँ मिस प्रिहान, अगर होता तो वाकई छुपाने की कोई बात नहीं थी। उसके जवाब पर प्रिहान का सकून गारत हुआ। वो झूठ नहीं बोल रहा था, चेहरे पर साफ लिखा था, वो सच बोल रहा है। प्रिहान का खिफत से चेहरा सुर्ख हुआ। वो एक शक की बुनियाद पर यहाँ तक आई और इतनी वजाहतें दी। कॉफ़ी तक पी ली और दिमाग में बार बार रिश्ता रिश्ता की रट। वो वही अजनबी निकला, बल्कि वो तो मनाल का हदीर था। उसने अपनी सोच पर लानत भेजी। क्या आप मुझ में इंटरेस्टेड है मिस प्रिहान? उसके चेहरे के उतार चढ़ाव का बगौर जायजा लेता वो उसकी तरफ आगे होकर संजीदगी से पूछ रहा था। डायरेक्ट ही पूछ लिया, इतना साफ को, इतना सीधा। नहीं, ऐसा तो नहीं है, मैं तो बस वो नॉर्मल सवाल। प्रिहान ने नफ़ी में सर हिलाया। अपनी बेवकूफ़ी पर आंखें भरने लगीं तो चेहरा नम हो गया। तो बस आप यही पूछने आई थी कि मैं इंगेज्ड हूँ या नहीं? उसने नतीजा अखज़ करके सर हिलाया, जैसे ओके सही समझ गया। और जाने क्या समझा था वो। उसने इतनी शर्मिंदगी ज़िंदगी में पहली बार महसूस की थी। उसे लग रहा होगा प्रिहान उसे पसंद करने लगी है। वो इंगेज थी और अब तो शादी भी होने वाली थी। और वो क्या गलतफहमी पैदा कर गई। मनाल को पता चला। इतने दिन बाद फिर से मनाल का खौफ सर पर सवार हुआ। वो तेज़ी से उठी। उसे शादी का बताने के लिए रुकना था, मगर उसे समझ नहीं आई रुक कर क्या करे। शादी का बताए या इनवाइट करे या फिर अब चलना चाहिए मुझे, काफ़ी लेट। बौखलाहट में वो बस इतना ही बोल पाए। वो खामोश नज़रों से उसे जाता देखता रहा। अजीब इंसान था। बात करता था तो लगता था बहुत कदर करता है, मगर जब उठ कर आई तो पीछे से रोकता तक नहीं था। वो तेज़ी से बाहर निकल गई। हदीर पुरसोच नज़रों से उसके छोड़े कॉफ़ी के आधे मग को तकने लगा। वो आई क्यों थी और इंगेज ना होने में ऐसा क्या बुरा था कि वो भीगती आंखें छुपा कर चली गई? वो उसे नहीं समझ पा रहा था, मगर वो उसे बहुत अलग और उलझी हुई सी लड़की लगती थी। पहली मुलाकात से लेकर आज की मुलाकात तक अच्छी लड़की थी। लगता था सादा, मासूम, उलझी हुई और कुछ परेशान सी। वो उसे हर बार मुतवज्जो कर रही थी, हर बार पहले से ज़्यादा दिलचस्प लग रही थी। एक लड़की अच्छी लगती है मुझे, बहुत प्यारी लगती है। वो नीली चमकती आंखों में खुशनुमा तस्वुर लिए बोल रहा था। लैपटॉप पर झुककर असाइनमेंट तैयार करते खानज़ादा ने उस इस अचानक बेमौका बात पर मुंह बनाया। अच्छा, शादी कर लो, पढ़कर क्या करना है? उसने वैसे ही बिगड़े सूझे हुए मुंह के साथ मशवरा दिया। जिगर वो छोटी है थोड़ी। उसने सर खुजाकर थोड़ा शर्मिंदगी से बताया। कितनी छोटी? फीडर पीती है या अभी बैठना सीखा है? खानज़ादा ने कहका लगाया मजाक उड़ाते हुए। मुझसे तो छोटी है काफ़ी। उसने सर्द आह भरी, जैसे मायूस हो, मगर लबों पर मुस्कुराहट मचल रही थी। तसव्वुर में जो चेहरा था वो उदास होने ही नहीं देता था। खानज़ादा चौंक गया। कोई बात नहीं, कितनी छोटी है? उसने लैपटॉप पर एक खिसका कर उसके करीब होते हुए पूछा। बस इतनी तो है कि तुम्हें नहीं बता सकता। वो कंधे उचकाकर बात घुमा गया। खानज़ादा ने उसे घूरा। मुसाब बताओ ना कौन है, मंगनी कर लो, उसके उसके बड़े होने पर शादी कर लेना। उससे पूछते वो शरारत से मशवरा दे गया। मूसा खिलखिलाया। बहुत प्यारी है, मंगनी की तो शादी के लिए दिल करेगा, जिद करेगा, बल्कि बहुत प्यारी है जिगर। उसने बालों में उंगलियां फेरते हुए जैसे उसे सोचते हुए जोश से आंखें मींची। खानज़ादा समझ नहीं पाया कि वो उसे प्यारी लगती है या फिर शक्ल से प्यारी है। मुंह बनाकर वो पीछे हुआ। डिग्री कंप्लीट कर लो, फिर प्यारी बच्चियों से दिल लगा लेना। और देखो, हमारी भी बहनें हैं तो प्लीज़ ये छोटी लड़कियों को गंदी नज़रों से देखना छोड़ दो। खानज़ादा ने नाक चढ़ाकर उसे समझाया तो वो शॉक्ड हुआ। तुम्हें क्या लगता है मैं छोटी लड़कियों को गंदी नज़र? दिमाग ख़राब हो गया तुम्हारा? मोहब्बत करता हूँ और उससे कहीं ज़्यादा उसकी इज्जत भी, इसलिए होंठों पर नाम तक नहीं लाया। तुम तो मोहब्बत से भी नावाकिफ़ हो। मूसा को सदमा पहुंचा था। बोलने पर आया तो बोलता चला गया। मुस्कुराहट दबाकर सुनते खानज़ादा ने बेनियाजी से कंधे उचकाए और मूसा उसे धक्का देकर बेड पर गिराता ऊपर चढ़ा।
अगले ही लम्हे मर्दान खाने में उनका शोर गूंज उठा। खानजादा की मसनूई चीखों पुकार पर आगा जान बैठक छोड़कर भागते हुए आए तो सामने मूसा उस पर चढ़ा उसका हुलिया बिगाड़ चुका था, मगर अब भी वो चीख ऐसे रहा था जैसे उस पर जुल्म हो रहा हो। ये क्या हो रहा है, कुछ तो अकल करो खान। आगा जान ने उन्हें टोकते हुए खानजादा को मूसा से दूर किया। आगा जान ये छोटी लड़ वो आगा जान के सामने मुंह खोल रहा था जब मूसा ने उसका मुंह सख्ती से बंद करवाते अपनी तरफ खींचा। सॉरी आगा जान, आप जाएं, अब आवाज़ नहीं आएगी। मूसा की माजरत पर वो सर झटकते लौट गए। ओए खान के बच्चे, खबरदार तुमने किसी को भी ये बात बताई तो। आगा जान के जाते ही मूसा ने घूर कर उसे वार्न किया और हंस हंस कर वो लोट पोट हो रहा था। छोटी लड़की, प्यारी लड़की, आह मूसा खान। उसने जाने कितने दिन मूसा को हर जगह सबके सामने छेड़ा था। वो शर्मिंदा सा कहानियां घड़ता उसे घूर कर रह जाता। खानजादा उसे इजहार पर उकसाता। शायद वो मान गया था, शायद इजहार किया था, शायद वो छोटी लड़की नहीं मानी, या जाने क्या हुआ। मगर एक दिन मूसा बहुत चुप चुप सा हो गया और पहले जैसा नहीं हो पाया फिर।